students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is designing a presentation. प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि पावर पॉइंट क्या होता है. पावर पॉइंट में हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड शो वगैरह क्या होते हैं, वो कैसे बनाते हैं. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करते हैं. Things to learn: slide layouts, using themes, different views of a presentation, changing the background, inserting pictures, smart art. Adi, dear Robo, I have created a presentation but it's not looking eye-catching. Can you please help me to make it presentable? Robo, yes, sure Adi. We can add some advanced feature of a PowerPoint in your presentation. Adi, how do I add these advanced features? Please tell me. Robo, okay. Adi, let's learn about this in the given picture. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे आप प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट है उसकी एडवांस फीचर्स को यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को पावरफुल अट्रैक्टिव बना सकते हैं. PowerPoint 2016 is a visual and graphical application primarily used for creating presentations. These presentations are made up of several pages called slides. You can arrange these slides in any order and run them as a slideshow. With PowerPoint, we can create, view and present slideshows that combine text, shapes, pictures, graphs, animation, charts and videos, etc. तो आपको पता ही है कि पावर पॉइंट एक ग्राफिकल एप्लीकेशन है जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हो. इसमें आप अपनी स्लाइड्स वगैरह क्रिएट करते हो और उनको अपने सिस्टमैटिक ऑर्डर में लगाते हो, फिर उनको एज ए स्लाइड शो रन करते हो. इसमें आपके टेक्स्ट भी होते हैं, शेप्स भी होते हैं, पिक्चर्स, ग्राफ, एनिमेशन, वीडियो वगैरह भी होते हैं. MS PowerPoint is a software used to make presentations. To make a presentation more attractive, we have to learn how to work on slides. There are a number of ways which help us to make a very beautiful presentation. Let us learn about them. तो आपको पता ही है कि MS PowerPoint एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स डालते हैं. Slide layout. PowerPoint enables us to choose a slide layout for our slide from a variety of slide layouts available in PowerPoint. A slide layout is actually an arrangement of different placeholders on a slide. It organizes the content that one wants to place on a slide using different types of placeholders depending on the information that one may want to include in the presentation. तो स्लाइड लेआउट क्या होता है? स्लाइड लेआउट जो होता है इसमें आपके वैरायटी ऑफ लेआउट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो आप अपने स्लाइड पे अप्लाई करते हो. प्लेस होल्डर्स आर द डॉटेड लाइन कंटेनर्स ऑन स्लाइड लेआउट्स दैट होल्ड सच कंटेंट एज टाइटल्स, बॉडी टेक्स्ट, टेबल्स, चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, वीडियोज एंड साउंड्स. Slide layouts also contain the color, font, effects and the background, collectively known as the theme of a slide. तो आपके जो प्लेस होल्डर्स होते हैं ये आपके डॉटेड लाइन के कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर आपके सारे कंटेंट आ जाते हैं, जैसे कि टाइटल हो गया, बॉडी टेक्स्ट हो गया, टेबल, चार्ट, एक्सेट्रा. स्लाइड लेआउट में आपके कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, बैकग्राउंड को भी चेंज करने का ऑप्शन होता है. By default, PowerPoint provides 9 slide layouts including a blank slide. PowerPoint also allows you to easily add, edit and delete slide layouts. तो इसमें आपको 9 तरीके के slide layouts देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हो और इनको आप टाइम रहते ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो. तो यहाँ पे आपके सामने पूरा एक कंपोनेंट है जो कि आपको दिखाता है कि कैसे आपकी जो स्लाइड है और कैसे आपके जो प्लेस होल्डर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. Changing the slide layout. To change the slide layout, follow the given steps. Step 1. Select the slide that you want to change the layout for. Step 2. Click on layout button under slides group of home tab. Step 3. Select the layout that you want. अब आपको क्या करना है, अगर आपको स्लाइड लेआउट को चेंज करना है तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, उस स्लाइड को सेलेक्ट करना होगा जिसका आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं. फिर आप लेआउट बटन पे क्लिक करेंगे जो कि आपको स्लाइड्स ग्रुप में मिल जाएगा होम टैब में. इसके बाद आपको जो भी लेआउट आप चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे.
Quick tips to change the slide layout. Right click on the slide and choose desired layout option. इसको आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्टकट की तरह भी कर सकते हो. आप जिस भी स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहते हैं आप उस स्लाइड पे जाकर के राइट क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. उस ऑप्शन से आप कोई भी लेआउट चूज कर सकते हैं. Now using themes, a theme is a predefined combination of colors, fonts and effects. They can be applied to a presentation. PowerPoint consists of inbuilt themes. These themes allow you to easily create attractive presentations without spending a lot of time. To apply themes or a design to a presentation, follow these steps. Step 1. On the Design tab in the Themes group, click the drop-down arrow to access more themes. Step 2. Hover over a theme to see a live preview of it on the presentation. Click on a theme to apply it to the slide. अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम थीम्स को यूज़ करते हैं. थीम जो होती है ये आपकी प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन होती है कलर्स का, फॉन्ट्स का एंड इफेक्ट का. इसको आप अपनी प्रेजेंटेशन में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो और अच्छी लगे. किसी भी थीम को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, डिज़ाइन टैब पे जाना है. यहाँ पे आपको थीम्स ग्रुप में बहुत सारे थीम्स के ऑप्शन मिल जाएंगे. ठीक है, इनमें से किसी भी थीम के ऊपर आप जा करके इसे चूज़ करके अपनी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं. You should know the default office theme consists of a white background, Calibri font and black text font color. Theme can be applied or changed at any time. तो आपके जो डिफ़ॉल्ट ऑफिस थीम होती है उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, वाइट कलर का होता है और इसका फॉन्ट कैलिबरी होती है जिसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं. Different views of presentation. PowerPoint includes different views of presentation at View tab. The slide view commands are also located at the bottom right of the PowerPoint window. There are 5 main slide views. अब यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन को पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट व्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं. इनमें आप अपनी जो स्लाइड है उनको देख सकते हो. जैसे पहला है नॉर्मल व्यू. This is the default view that you see when you first start PowerPoint. It displays all the slides in thumbnails in the slide pane on the left, the current slide in the slide pane in the middle and a notes pane at the bottom. This is the main editing view where you can create and design योर प्रेजेंटेशन. तो ये आपका डिफ़ॉल्ट व्यू होता है जिसमें आपकी जो स्लाइड्स होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं. ठीक है, ये आपके स्लाइड्स को थंबनेल में दिखाता है इन द स्लाइड पैन जो कि आपके लेफ्ट साइड में होता है और आपकी जो करंट स्लाइड जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं वो आपको स्लाइड पैन में नज़र आती है. Outline view. This view displays the outline of the slides in the slide thumbnail pane on the left instead of the thumbnails. This view display only the text on your slide. The current slide is displayed in slide pane and the notes are at the bottom. आउटलाइन व्यू जो होता है ये आपके स्लाइड के आउटलाइन को दिखाता है और उसमें जो भी आपका कंटेंट होता है, जो भी आपके नोट्स होते हैं वो आपको ये दिखाता है. यहाँ पे आपको करंट स्लाइड दिखाई गई है जिसमें आपका जो नोट्स हैं वो आपके बॉटम में नज़र आ रहे हैं. You should know outline view is the best way to organize and develop the content of your presentation as you can see all the titles and main text on the screen while working. Outline view जो होता है ये best way होता है आपकी जो content है उसको organize करने का, develop करने का. Slide sorter view. You can see miniature slides of the presentation in this view. This makes it easy to add, delete and move slides. This view helps us to organize the sequence of the slide. नेक्स्ट है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू. ये आपके जो स्लाइड्स होती हैं उनको मिनिएचर फॉर्म में दिखाता है ताकि आप इजीली किसी को भी चूज़ करके उस पर क्या कर सके, काम कर सके. तो उनका जो कंटेंट होता है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में नज़र आता है जिनको आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार. To rearrange the slides in slide sorter view, step 1 click on the slide sorter view button on the view tab. Step 2 select the slide that you want to move. Step 3 drag the selected slide to a new location. अगर आप अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्लाइड शॉर्टर व्यू को क्लिक करेंगे या उसको चूज़ करेंगे ऑन द व्यू टैब. देन आप स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप मूव करना चाहते हैं, फिर आप उसको ड्रैग करके अपने माउस से लेकर के जाएंगे न्यू लोकेशन पे. Notes page view. The notes page view displays the slide and the notes pane below it on the page. Notes pane is an area where the presenter type notes related to that slide which he uses during a presentation.
You can also print these notes to give to the audience for reference. तो नोट पेज व्यू जो होता है ये आपके स्लाइड को और नोट पैड को क्या करता है, डिस्प्ले करता है एक पेज पे। नोट्स जो होते हैं ये आपका एक एरिया होता है जहाँ पे आपके जो प्रेजेंटर होते हैं वो आपके स्लाइड के जितने भी नोट्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं ताकि इनकी ऑडियंस को एक रेफरेंस मिल सके। नाउ थिंक एंड शेयर, डू यू थिंक नोट्स पैन इज़ हेल्पफुल टू द स्पीकर, वाई? क्या आपको लगता है कि जो नोट्स पैन है ये स्पीकर के लिए हेल्पफुल है या नहीं? अगर है तो क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। Reading view, in this view which is ideal for previewing the presentation, each slide fills the screen. You can click buttons on the navigation bar to move through or jump to specific slides. In this view you see your presentation the way your audience will. अब रीडिंग व्यू जो होता है ये आपको स्लाइड को ऐसे दिखाता है जैसे कि आप क्या है, खुद ही ऑडियंस है, मतलब आपकी स्लाइड ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट होगी ये आपको एक बार उसका प्रीव्यू जो है दिखाता है। Changing the background, every slide has a background on which all slides elements reside. You can make the background colorful or plain white or you can even use a texture. तो आप अपने बैकग्राउंड को, जो आपकी स्लाइड का बैकग्राउंड हो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अपने पिक्चर्स डाल सकते हैं, टेक्सचर्स डाल सकते हैं और कलरफुल इसे बना सकते हैं। Giving a solid color background, follow the given steps to give a solid color background. Step 1, select the slide you want to change the background of. Step 2, click on the design tab, select the format background command. The format background dialog box opens up. Step 3, click on the radio button of a solid fill. Step 4, click on the fill color button to open the color palette. Select the color you want to apply as a background. Background color applies to the currently selected slide. Step 5, you can click on apply to all button to apply solid colors on all the slides. इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे जिसका भी बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं। देन आप डिज़ाइन टैब पे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड कमांड को। ठीक है, इसके बाद आपके सामने फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। देन आपको क्लिक करना है रेडियो बटन पे सॉलिड फिल के। इसके बाद आप क्लिक करेंगे फिल कलर बटन पे ताकि आप कलर पैलेट को ओपन कर सकें। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें से आपको जो भी कलर आपको चूज़ करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप करेंगे क्लिक अप्लाई टू ऑल पे, तो ये जो आपका कलर है ये सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। Giving a gradient colored background. In the format background dialog box, follow the given steps to give a gradient color background. Step 1, click on the radio button of a gradient fill. Step 2, click on the preset gradients button. Step 3, select the pattern you want to apply as a background. Step 4, click on the down arrow button of type to select the type of gradient pattern. Step 5, click on the down arrow button of direction to select any direction of gradient fill. The gradient fill applies to the currently selected slide. Step 6, you can click on apply to all button to apply gradient fill on all the slides. अब अपनी जो स्लाइड है उसमें आप ग्रेडियंट कलर भी फिल कर सकते हैं, बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे रेडियो बटन पे ऑफ रेडियो फिल ग्रेडियंट फिल। इसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रीसेट ग्रेडियंट बटन पे। देन आप सेलेक्ट करेंगे पैटर्न को जो भी आप अपने बैकग्राउंड में अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे ऑफ टाइप टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ ग्रेडियंट पैटर्न। देन आप क्लिक करेंगे अगेन ड्रॉप डाउन एरो बटन पे जो कि आपको डायरेक्शन दिखाएगा ताकि आप ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है उसको फिल कर सकें। ग्रेडियंट जो है वो आपकी स्लाइड पे, जो सेलेक्टेड स्लाइड है उस पर फिल हो जाएगा और इसको आप सारी जो स्लाइड्स है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल करके। नाउ गिविंग अ टेक्सचर कलर्ड background. In the format background dialog box, follow the given steps to give a texture colored background. Step 1, click on the radio button of picture or texture fill. Step 2, click on the texture button. Select the texture you want to apply as a background. The texture fill applies to the currently selected slide. Step 3, you can click on apply to all button to apply texture fill on all the slides. इसके लिए भी सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे और उसके बाद आप क्लिक करेंगे रेडियो बटन ऑफ पिक्चर और टेक्सचर फिल। देन आप क्लिक करेंगे टेक्सचर बटन पे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे टेक्सचर को जिसको आप अप्लाई करना चाहते हो एज ए बैकग्राउंड। टेक्सचर फिल जो है ये अप्लाई हो जाएगा आपकी करंट स्लाइड पे। अगर आप इसको सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई टू ऑल बटन पे क्लिक करेंगे।
Now critical thinking, will the content typed in dark color be visible on a dark background? क्या आपको लगता है डार्क बैकग्राउंड पे जो भी आपने डार्क कलर से लिखा है, टाइप किया है, वो नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। Inserting pictures, we can add pictures to our presentation to make it look attractive. This can be done in two ways, inserting pictures from a file and inserting pictures from web. Let us learn both these ways. अब आप अपनी स्लाइड पे पिक्चर्स भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब पिक्चर्स जो है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप अपनी फाइल से कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट वेब नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम अ फाइल, तो पहले हम जान लेते हैं कि कैसे आप फाइल में से, मतलब आपकी कंप्यूटर फाइल में से कैसे आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं। Follow these steps to insert a picture from a file. Step 1, click on the pictures button on the images group of the insert tab. You will see the insert picture dialog box. Step 2, select the desired picture and click on the insert button. The slide will display the selected picture. इसके लिए सबसे पहले आप पिक्चर बटन पे क्लिक करेंगे जो कि आपको इमेजेस ग्रुप में नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे पिक्चर डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसको भी आप अपनी स्लाइड में डिस्प्ले करना चाहते हैं। इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम वेब, अब हम जान लेते हैं कि आप वेब से कैसे पिक्चर डाउनलोड करते हो, इम्पोर्ट करते हो। फॉलो दीज स्टेप्स टू insert a picture from a web. Step 1, click on the online pictures button in the images group of the insert tab. You will see the insert picture dialog box. Step 2, type the terms to be searched in the binge image search box. Step 3, you will see a gallery of related pictures. You can modify search results by specifying details like size, type and color of the objects to be searched. Step 4, select the desired picture and click on the insert button. The slide will display the selected picture. इसके लिए सबसे पहले आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स बटन पे जो कि आपको इमेजेस में ही इंसर्ट टैब पे दिख जाएगा। देन आप देखेंगे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको उस टर्म को सेलेक्ट करना है या सर्च करना है बिंज इमेज सर्च बॉक्स को, जिसके भी इमेज आप चाहते हैं। आपके सामने एक गैलरी ओपन हो जाएगी जो आपको रिलेटेड पिक्चर्स दिखाएगी। इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इनका साइज़ घटाना या बढ़ाना जो भी आपको चाहिए, इनका कलर वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप सेलेक्ट करेंगे डिज़ायर पिक्चर्स को और फिर आप क्लिक करेंगे इंसर्ट बटन पे, तो आपकी जो स्लाइड है वो सेलेक्टेड पिक्चर के साथ डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग वाइल वर्किंग ऑन MS PowerPoint, कैन वी डाउनलोड अ पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट एंड प्लेस इट ऑन वन ऑफ आवर स्लाइड्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप MS PowerPoint में वर्क करते हुए अपनी कोई भी पिक्चर को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। Now smart art graphic is a visual presentation of your information to effectively communicate your message or ideas. Smart art allows you to communicate information with graphics instead of just using text. Traditional bullet points can be transferred into eye-catching smart graphic. The smart art graphics are grouped into 7 categories like list, process, cycle, hierarchy, relationship, matrix and pyramids. The steps to insert a smart graphic card as follows. Step 1, select the slide where you want the smart art graphic to appear. Step 2, from the insert tab, select the smart art command in the illustration group. Step 3, a dialog box will appear. Select a category on the left. Choose the desired smart art graphic, then click OK. स्मार्ट आर्ट क्या है, ये आपके ग्राफिक्स होते हैं जो कि आपकी स्लाइड जो है या प्रेजेंटेशन है उसको और इफेक्टिव बनाते हैं। स्मार्ट आर्ट के अंदर आपके बुलेट्स वगैरह आ जाते हैं जिसमें आप लिस्ट वगैरह जो है वो नंबर्स में शो कर सकते हो ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो और अच्छे से आपकी स्लाइड को, आपकी प्रेजेंटेशन को समझ सके। अब यहाँ पे स्टेप्स हमें दिए गए हैं कैसे आप इंसर्ट करते हो स्मार्ट ग्राफिक कार्ड। इसके लिए आप स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले जिसमें भी आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को अपीयर करवाना चाहते हैं। देन आप इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इसके बाद आप स्मार्ट आर्ट कमांड पे जाएंगे जो कि आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप में मिल जाएगा। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपके सामने जो आपको कैटेगरी के साथ ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी कैटेगरी या जो भी ऑप्शन आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। The smart art graphic will appear on the current slide. Now quick tips, you can also click the insert a smart art graphic command in a placeholder to add smart art. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की आपको यहाँ दी गई है। आप इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पे क्लिक करके
यहाँ पे आप प्लेस होल्डर को अप्लाई कर सकते हैं अपने स्मार्ट आर्ट पे। Now to add text to a smart art graphic. Step 1, select the smart art graphic. The text pan will appear to the left. Step 2, enter text next to each bullet in the text pan. The next will appear in the corresponding shape. It will be resized automatically to fit inside the shape. यहाँ पे आप अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को, फिर आपके सामने टेक्स्ट पैन अपीयर हो जाएगा लेफ्ट साइड में। इसमें आपको अपना टेक्स्ट जो है टाइप करना है, ठीक है। फिर आप इसको रिसाइज कर सकते हैं या इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। Think and share presentations do not have a problem with lack of information. Most of the time the problem is that there is too much information. प्रेजेंटेशन जो है वो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती कि आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन कम है। कभी कभी ये इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि कभी कभी हमारे पास टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम समझ नहीं पाते कि कैसे हम इसको दर्शाएं या कैसे इसे अपनी स्लाइड पे दिखाएं। Tricky terms: presentation, a collection of slides, slide, a page of a presentation, slide layout, an arrangement of different placeholders on a slide, placeholders, boxes with dotted borders, theme, a predefined combination of colors, fonts and effects, smart art, a set of graphics to create diagram. सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने अपनी प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बनाना सीखा, कैसे हम अपने बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, कैसे हम स्लाइड्स को एक सीक्वेंस में लगाते हैं और कैसे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को अपनी प्रेजेंटेशन में अप्लाई करते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.